یہ دو قرآن ایک تلاوت کے لیے الگ ہے اور دوسرا الگ یہ کھلا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. آیت 55 ہے نا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. وَإِذْ قَالَ، اِذ کا لفظ ہے جب، اور یہ یاد دلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ وقت یاد کرو جب یہ واقعہ ہو. یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ وقت یاد کرو، بلکہ صرف لفظ اذ سے جب یہ ہوا تو اس میں وہ مفہوم شامل ہے. اس وقت کو بھی یاد کرو، اس وقت کو بھی یاد کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا. نام سوری، وہ دوسرا ہے. وہ میں آیت 55 سے دوسری جگہ چلا گیا تھا، یہیں سے دیکھتا ہوں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. باتخاذکم العجلہ، بچھڑے کو معبود بنا لینے کے ذریعے بچھڑے کو تم نے پکڑ لیا. یہاں لفظ معبود ظاہر نہیں فرمایا گیا، لیکن چونکہ پہلے ذکر چل چکا ہے اس لیے معبود کہنے کی ضرورت نہیں. باتخاذکم العجلہ کا مطلب یہی ہے کہ بچڑے کو معبود بنا لینے کے نتیجے میں یا کے ذریعے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فتوبوا الی بارئکم، بس اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرتے ہوئے جھکو، اس کے حضور توبہ کرو.
फख्तुलू अनफुसकुम, और अपनी जानों को कत्ल करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम, ये बात तुम्हारे पैदा करने वाले के हुजूर बेहतर है, उसके नज़दीक अच्छी चीज़ है। फताबा अलैकुम, बस वो तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेगा। वैसे माजी में है, लेकिन मज़मून बता रहा है कि अगर ये करो तो क्या होगा। ये आइंदा के ताल्लुक़ में माजी का इस्तेमाल कुरान करीम में आम है, और पहले भी मैं इसकी मिसालें दे चुका हूँ। फताबा अलैकुम, बस वो तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। और बाज़ ये भी तर्जमा करते हैं बस उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। दोनों सूरतों में जायज़ हो सकता है, लेकिन मज़मून का तकाजा ये है सियाक़ सबाक़ का कि यहाँ मुस्तक़बिल में तर्जमा किया जाए। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, यकीनन वो हुवत तव्वाबुर रहीम वही है जो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला और बार बार रहम करने वाला है। ये आयत तर्जमे में काफ़ी दिक्कतें पेश करने वाली है। यानी पुराने तरज़ के उलमा जो अज़मन वस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लफ्ज़ी तर्जमों को तरजीह देते हैं, वो जब कत्ल का तर्जमा वाक़अतन जिस्मानी कत्ल लेते हैं तो उससे बहुत सी उलझनें पैदा हो जाती हैं, और ख़ुद उनके लिए भी इस मामले को सुलझाना फिर आसान नहीं रहता, क्योंकि सियाक़ व सबाक़ ये बता रहा है कि लफ्ज़ी कत्ल का तर्जमा यहाँ बैठ ही नहीं सकता, और जब लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे तो और अजीब व गरीब से एतराज़ इसमें से उठने शुरू हो जाएंगे। मसलन अल्लाह ताला हज़रत मूसा ने कौम से कहा, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया, बित्तखाज़िकुमुल इजला, बछड़े को मबूद बनाकर, फतूबू इला बारिकुम, अपने रब के हुजूर तौबा करो। तो तौबा के नतीजे में इंसान अपनी कुर्बानी पेश किया करता है, दूसरों को तो कत्ल नहीं किया करता। ये अच्छी तौबा है कि अपने गुनाहों का बदला, तौबा तो वही करता है जिससे गुनाह सरज़द हुआ, अपने गुनाहों के बदले में दूसरों का कत्ल आम शुरू कर दे, ये कैसी तौबा हो गई। तो वो ये तर्जमा यही करते हैं, और हैरत अंगेज़ है कि इन मौलवियों को ये दिखाई नहीं देता कि हम कुरान करीम की तरफ क्या बात मंसूब कर रहे हैं। उनका नज़रिया ये है कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने मूसा के ज़रिए कौम को पैगाम दिया कि अब एक दूसरे से खाना जंगी शुरू कर दो, खूब लड़ो, जिसका दाव चले वो दूसरे को कत्ल कर दे, ये तुम्हारी सज़ा है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम, ये पैदा करने वाले के नज़दीक बहुत अच्छी बात है कि जो उसने पैदा किया उसको हलाक कर दिया जाए, ये तर्जमा बन जाएगा। ये अजीब अच्छी बात है। अल्लाह ने पैदा फरमाया, अरबों अरब साल तैयारियां हुई, और फिर कहता है कि बहुत अच्छा लगेगा पैदा करने वाले को कि उसकी खलकत दूसरी को ज़िबा करे और कत्ल आम कर दे। फताबा अलैकुम, और इस पर वो तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा अगर तुम एक दूसरे को कत्ल करोगे। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बहुत ही ज़्यादा शफकत के साथ तौबा कबूल करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। कत्ल आम करवा दिया तो तव्वाब और रहीम का मजमून कहाँ गया फिर। और अक्ल के ख़िलाफ़ बात, जिसका कोई इंसानी फितरत से लगाव नहीं है, बेजोड़ बात है, और खुदा ताला की सिफ़ात जो बयान हो रही हैं उनके साथ इस तर्जमे का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका एक ही तर्जमा जायज़ है, और वो है कत्ल नफ्स, नफ्स अम्मारा को कत्ल करो। इसके सिवा और कोई मजमून यहाँ नहीं बनता। नफ्स अम्मारा को कत्ल करो अगर आप इसमें शुमार करें, जो कुदरती बात है। नफ्स को कत्ल करने के माने अपने नफसानी ख्वाहिशात को, अपनी बदी की हुक्म देने वाले मुहर्रिकात को कत्ल कर दो, इसको नफ्स अम्मारा कहते हैं। तो इसका मतलब ये बनता है फिर और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, यकीनन तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया है, बस अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करते हुए झुक जाओ और अपने नफूस, यानी ब्रैकेट में मैंने अम्मारा लिखा है, अपने नफूस को कत्ल करो, अपने
नफ्स अम्मारा को कत्ल करो। ये तुम्हारे पैदा करने वाले के हुजूर तुम्हारे लिए सबसे बेहतर बात है, बस वो तुम पर तौबा कबूल करते हुए मेहरबान होगा या हुआ, यकीनन वो बहुत ही तौबा कबूल करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। अगर हुआ में तर्जुमा करें तो मुराद ये, जब ये कहा तो ये वाक़या हो गया और फिर उसके नतीजे में अल्लाह ताला मेहरबान भी हो गया और ये किस्सा ख़त्म हुआ। और जब तुमने ये कहा, यानी वो दिन भी याद करो जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन नुमिन लका, हम हरगिज़ तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता नरल्लाह जहरतन, यहाँ तक कि हम देख लें अल्लाह को खुलम खुला ज़ाहरी तौर पर। फ़अख़ज़तकुम साइक़तु, तो तुम्हें आसमानी बिजली ने आ लिया, व अंतुम तंजुरून, और तुम देखते रह गए। ये वाक़या जो है ये 2 मरतबा कुरान करीम में हज़रत मूसा के हवाले से बयान हुआ है। एक मरतबा हज़रत मूसा का खुदा से ये अर्ज़ करना कि ए खुदा मुझे अपना दीदार करा, और हज़रत मूसा के पास पहाड़ पर बिजली गिरी और उसके नतीजे में वो रेज़ा रेज़ा हो गया पत्थर जिस पर वो बिजली ने अपना निशाना किया, और हज़रत मूसा ने फिर तौबा की और वो बेहोश होकर जा पड़े। एक ये वो वाक़या है। अब कौम ने भी वही बात कही, अपनी ज़ाहिरी आँखों से देखने का उन लोगों को बहुत शौक़ था, और ये तभी बात है, वो ज़माना ऐसा था, क्योंकि उससे पहले माबूदान का गायबाना तस्वुर कोई नहीं था। हर गायब माबूद जिसकी वो पूजा करते थे लोग, उसका एक ज़ाहिरी मज़हर हुआ करता था, खा वो बुतों की सूरत में हो, खा वो गाय बछड़े की सूरत में हो। सूरज की भी परस्तिश करते थे तो सूरज का एक बुत बना रखते थे। फ़िरौन मिस्र का यही दस्तूर था, और उससे पहले भी लंबे अरसे से उन इलाक़ों में जो पूजा होती थी, अगर खुदा को गायब मानते भी थे तो उसके हाजिर के सामने सर झुकाते थे, जो खुदा का हाजिर समझते थे कि एक बुत या कोई एक जानवर वगैरह है। इस आदत के नतीजे में उनको ज़ाहिरी तौर पर कुछ दिखाई देना चाहिए था, और ये तभी बात है, ये तकाज़ा करें कि हम बाकी मबूदों को तो देखते हैं तो उनके सामने झुकते हैं, हम मूसा के गायब खुदा को किस तरह तस्लीम करें या उसके सामने कैसे झुकेंगे। ये जो मज़मून है इसका इयादा भी इसके जवाब का वैसा ही हुआ है। फरमाया कि जब उस कौम ने ये कहा, मुखातब मूसा से कहा कि हम अल्लाह को जब तक ज़ाहिरी आँखों से नहीं देखेंगे, जहरतन का तर्जुमा ज़ाहिरी आँखों से देखना, ज़ाहिर तौर पर देखना, उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे। फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु, तो तुम्हें बिजली ने आ लिया, व अंतुम तंजुरून, और तुम देखते रह गए। थुम्मा बासनाकुम मिन बाद मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, फिर हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। ये मज़मून भी साफ बता रहा है कि मुहावरे जो लफ्ज़ी हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, वो लफ्ज़न मज़मून पर इतलाक़ नहीं पाते, बल्कि मुहावरे हैं और इशारतन और बातें बयान हो रही हैं। मौत से मुराद ज़ाहिरी मौत नहीं, बल्कि मौत के मुशाबे होना। ये सारी तर्ज़ कलाम इसी तरह चल रही है, इस्तिआरे की बातें जैसे की जाती हैं। तो पहले भी उनको फ़क़्तुलू फरमाया, और मुराद उससे नफ्स का कत्ल था, ना कि जिस्मों का कत्ल। अब यहाँ भी अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम पर जब बिजली पड़ी है तो तुम मुर्दों की तरह हो गए, और हमने तुम्हें उस मुर्दा हालत से दोबारा ज़िंदा कर दिया, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करने वाले बनो। अब इसकी जो ग्रामर है थोड़ी बहुत उसकी भी गुफ्तगू करते हैं। व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, काला क्या चीज़ है, किसी को पता है, याद है?
क्या माजी? क्या? हाँ बताएं। हैं? ये क्या चीज है? इसको क्या कहते हैं ग्रामर में? उस एक मर्द ने या उस एक ने कहा। मर्द जरूरी नहीं, को अल्लाह के लिए भी काला का लफ्ज आता है। एक मुज़क्किर ने, यानी मुज़क्किर का सीगा है। ये फेल माजी है, खाली माजी कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि माजी तो ज़माना है। ये फेल माजी है, यानी वो लफ्ज़, बामाना लफ्ज़ जो माजी का मफ़हूम देता है, उसको फेल कहा जाता है। इस हवाले से आपको मैं बता दूं, अक्सर ने तो बचपन में पढ़ा भी होगा कि जो बामानी कलाम है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और दुनिया में हर जगह हर ज़ुबान के साथ यही है। उससे ज़्यादा उसकी तकसीम अक़लन हो नहीं सकती। एक है इस्म। इस्म नाम को कहते हैं, और नाम की क्या तारीफ़ है? अगर आप नाम कहना चाहें उर्दू में सोच लीजिए, तो नाम की क्या तारीफ़ करेंगे जो किसी और लफ्ज़ पे सादिक ना आए? कोई कर सकता है तारीफ़ इमाम साहब और इमाम साहब के बेटे के सिवा? हैं? क्यों याद है आप में से किसी को? ख़वातीन बताएं। रूईशा, नाम क्या होता है बताओ? नाम किसी के लिए मखसूस के शख्सियत को बताने के लिए। नाम की ऐसी तारीफ़ करो जो किसी और चीज़ पर सादिक ना है, सिर्फ नाम ही। नामों से, नाम की तारीफ के अंदर सिर्फ नाम ही शुमार हो सकें। किसी शनाख्त के लिए क्या? अगर निशान लगा दो तो वो नाम होगा। क्यों जी अशरफ साहब, तुझे मुस्कुरा रहे हो? की ना है तोड़ा? नाम को बाकी चीज़ों से अलग करने के लिए नाम की कोई तारीफ करें। तारीफ से मुराद नहीं कि उसके कलाबे बनाएं उसकी तारीफ में, उसको डिफाइन करें, डेफिनेशन। उसके लिए कोई हैं? तजवीज़ करना, क्या कोई मखसूस नाम, ये नाम पहचान हजूर की पहचान। नाम उस कलेमे को कहते हैं जिसमें माना पाया जाए मगर ज़माना ना पाया जाए, और उसको सुनने के बाद माना तो समझ आए लेकिन किसी ज़माने की तरफ ध्यान न जाए। मसलन जब हमने कहा अभी रूही शाह, तो कोई ज़माना नहीं है इसमें। और इमाम साहिब कहा, कोई ज़माना नहीं। इमाम साहब का बेटा का नाम लें अगर, क्या नाम है? मुनिम, अताउल मुनिम। तो अताउल मुनिम में कोई ज़माना नहीं, दिमाग जाता ही नहीं किसी ज़माने की तरफ, लेकिन एक माना समझ आ गया कि ये फ़लाँ शख्स के ऊपर इतलाक़ पा रहा है, और वो जो पूरा उसकी शक्ल, उसके तसव्वुर, जिस हद तक ये आपको इल्म है वो जहन में उभरेगा। बस नाम के साथ माना माना शामिल होता है लेकिन ज़माना शामिल नहीं होता। वो कलेमा जिसमें ज़माना भी हो और माना भी हो उसे फेल कहते हैं। मारा, खाया, खाऊंगा, मारूंगा, खा रहा है, मार रहा है, इन सब कलिमात में माना पाया जाता है और ज़माना भी फ़ौरन आ जाता है जहन में। बग़ैर ज़माने के तसव्वुर के फ़ेल वाक़ हो ही नहीं सकता, और नाम ज़माने के तसव्वुर के साथ नहीं हो सकता। जब तक आप और अल्फाज के ज़रिए नाम को किसी ज़माने के साथ मंसूब ना करें, वो एक पूरा कलाम हो जाएगा, एक कलिमा नहीं रहेगा। उस वक्त तक नाम में ज़माना नहीं है, और फ़ेल में लाजिमन माना भी है और ज़माना भी है। ठीक है? और तीसरी किस्म क्या है? ऐसा बामाना लफ्ज़ जो अकेले माने न दे और उसमें ज़माना भी न पाया जाए, अपने माना देने के लिए दूसरे लफ्ज़ का लाजिमन मोहताज हो। मसलन, क्यों फरज वाक़ई आप क्या कह रही हैं? तो हरफ कहते हैं? हरफ कहते हैं। हाँ हाँ ठीक है।
हरफ होता है वो, मसलन से, को। अब खाली को क्या मतलब? खाया से तो आपको बात समझ आ गई, अताउल मुनिम से बात समझ आ गई, लेकिन से को ने कुछ भी माना नहीं दे रहा है, लेकिन पता है कि बामाना लफ्ज है, क्योंकि जब उससे फलां ने कलाम किया और उसको ये कहा, तो इन को से नो को बीच में से निकाल दें तो मजमून बेमाना हो जाएगा। तो खुद माने हासिल करने के लिए हरफ दूसरों का सहारा ढूंढता है और दूसरे बामाने अल्फाज हरफ के सहारे नए माने पैदा करते हैं। किसने किसको मारा, ने और को बता रहे हैं आपको, वरना जैद बकर मारा कुछ नहीं पता लगता है। जो नई जुबान सीखते हैं वो इस तरह बोलते हैं। चीनी साहब जो नए नए आए थे तो इस तरह कहा करते थे, फलां फलां मारा, फलां फलां पढ़ा। तो वो मुश्किल ये है कि हरूफ के अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर माने मुकम्मल नहीं होते। बस ये मददगार है मानों के लिए, और बामाना है इसलिए मददगार है, वरना एक निस्बत से दूसरी की तरफ मुंतकिल करने के लिए अगर इसमें माना ना होता तो ये काम कर ही नहीं सकता था। बस जहाँ दूसरों से कुछ अखज़ करता है वहाँ दूसरों को कुछ देता भी है, इसको कहते हैं हर्फ। ठीक है। अब इस्म, फेल और हरफ, ये तीन चीज़ें हैं, इनके अंदर ही सारे ज़ुबानों के मज़ामीन फैले हुए हैं। और मुहमल भी कहलाता है एक चीज़। मुहमल ऐसी आवाज़ों को कहते हैं जिनमें ना माना, ना ज़माना, ना किसी और लफ्ज़ के साथ मिलकर माने देना शामिल हो। क्यों जी, कोई मुहमल बात आती है आपको? अताउल मुनिम बताएं। हाँ, ऊट पटांग, क्या कहते हैं, अनशन, जो भी मुंह से बकना होता है ना, जो वाह 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 की आवाज़ें निकालना, ये वो, या भैंस की आवाज़ निकालना मिसाल के तौर पे। हर वो आवाज़ जो ना जिससे ना ज़माना की तरफ ध्यान जाए, ना नाम की तरफ ध्यान जाए, ना वो किसी और कलिमे के साथ मिलकर माने हासिल करे या माने अता करे, उस आवाज़ को मुहमल कहते हैं। ठीक है। वह इज़ काला, इज़ क्या है? जब है। क्यों जी इमाम साहब आप बताएं। इसमें ज़र्फ नहीं है ये? हाँ, तो फिर ये है, इसमें ज़मान, हरफ ज़मान, हरफ है या नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे जहन में इस वक्त वाज़ेह नहीं है कि इसको हर्फ, ये दो हरफ और इसम के दरमियान की चीज़ है कोई। हरफ ही बनेगा क्योंकि अपनी ज़ात में मुकम्मल माना नहीं देता, इस तारीफ की रूह से हरफ ही बनेगा। तो इज़ आगे है काला। काला क्या है? फेल माजी और वाहिद है और मुज़क्कर के माने रखता है। ले कौबिही, ले क्या है? हाँ? हर्फ। और कौम क्या है? हाँ जी बताएं जी, आप बताएं। अशरफ साहब सो गए हो? हैं? क्या इसमें? ठीक है, इसम है। जब हम सरफी गुफ्तगू करते हैं तो उसमें मफूल फाइल का कोई जिक्र नहीं आता, उसमें इस्म फेल हर्फ की बहस होती है और इस्म फेल हर्फ की किस्में बयान होती हैं। इसको कहते हैं सरफी बहस। और इसके लिए आम तौर पर सीगा का लफ्ज़ बोला जाता है। जब सर्फ का पर्चा हो तो पूछा जाता है इसका सीगा क्या है,
कुछ कले में लिखे होते हैं, कुछ हरूफ लिखे होते हैं, वो सीगा पूछते हैं। तो सीगे में कुछ बातें बयान की जाती हैं और उससे तायीन हो जाती है कि ये क्या चीज़ है। मसलन आपने कहा फ़ेल माजी है, अब फ़ेल का पता चल गया और ज़माने का पता चल गया, दो बातें समझ आ गई। लेकिन फ़ेल माजी तस्निया भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है। तो दूसरा सवाल क्या उठेगा सीगे के लिए? सीगा एक ऐसी पहचान को कहते हैं जो 100% तशखीस कर दे कि उसके सिवा किसी और के ऊपर उसका इतलाक हो ही न सके। इसलिए ग्रामर की बहस में जब सर्फ की बहस उठती है तो सीगा पूछा जाता है। तो काला का सीगा क्या है, कोई बता सकता है? हैं? सीगा वाहिद बस। हाँ हाँ, और फेल माजी फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, एक चीज रह गई है जी, वो इमाम साहब शायद बता दें। हैं? मारूफ भी आएगा और एक और भी है, गालबन 6 या 8 चीजें हैं, अभी याद आती जाएंगी, बताता जाऊंगा आपको। हाँ, असी 1951 में पड़ी सी है अंदाजा ला लो, कई थोड़ी जो पैदा भी नहीं हो, अक्सर पैदा नहीं हो ऐसा। हाँ, फिर बताएं। एक मारूफ मजहूल, फेल की पहचान में मारूफ और मजहूल भी, और तीसरा है सलासी है कि मुजर्रद, सलासी मुजर्रद है, सलासी मजीद फी है, रुबाई है, खुमासी। इन सब के लिए अलग अलग तारीफ़ें हैं, मैं आपको लंबे झगड़े में नहीं डालूंगा, तो मुख्तसर बता देता हूँ। अरबी में जितने भी अफ़ाल हैं उनकी अक्सरियत ऐसी है जो 3 हरफों से बने हुए हैं, और ज़रबा में ज़ाद रे बे, क़तला में क़ाफ ते लाम, कितने हैं? 3। और इसको सलासी मुजर्रद कहते हैं, यानी कंवारी सलासी जिसकी अभी कहीं शादी नहीं हुई और नए रंग नहीं भरे, नए रिश्ते पैदा नहीं हुए। जब इसमें इजाफे होते हैं, कुछ दूसरे अल्फाज से ताल्लुक़ जोड़ती है सलासी मुजर्रद, तो नए माने पैदा कर देती है। और नए माने पैदा करने के लिए बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो सीगे में बाप पूछा जाता है, बाप बताओ क्या है। बाप में अगर 3 हर्फ का लफ्ज़ हो, जैसा कि इस काला लफ्ज़ है, 3 हर्फों का लफ्ज़ है, इसको अब क्या कहेंगे? सलासी मुजर्रद। और अगर सलासी हो लेकिन उसमें माने पैदा करने के लिए बाज़ बाब में दाखिल किया जाए, बाज़ बाबों में दाखिल करके नए हरफ साथ दाखिल कर दिए जाएं, तो उससे मज़मून बदलते हैं और उन्हीं 3 हरफों में नए माने पैदा हो जाते हैं। इसको बाप कहते हैं। मसलन क़तला, उसने कत्ल किया। इक़्ततला, उसने कत्ल का मुतालबा किया या कत्ल का फेल अपने लिए चाहा। और क़त्तला, खूब कत्ल किया, ते पे ज़बर आ गई तो उससे खूब और ज़ोर के माने पैदा हो गए। और लफ्ज़ों में और मिसालें भी आ जाती हैं। मसलन ज़राबा का मतलब होता है मारा, और इस तरबा का मतलब है बेचैन हुआ। तो ते जो है वो यहाँ तोए लिखी जाती है, वरना असल में वो है इद तोराबा, और द्वात के बाद जब ते आए तो वो उसको तोए में बदल देती है। तो आपने इस्तराब का लफ्ज़ उर्दू में बारहा पढ़ा है, सुना है। अंदरूनी तौर पर इंसान खुद मारा जाता है, तो इसे कहते हैं बाब इफ्तियाल, यानी वो फेल जो किसी और पे वाक़या होना था वो अपनी ज़ात पर वाक़या हो जाए, ये बाब इफ्तियाल है। तो जब आप सीगा बताती हैं या सीगा बताते हैं
تو اس میں باب کو بھی یاد رکھیں. تو قالا کا باب کیا ہے؟ ثلاثی مجرد، یہ باب ہے. اور اگر قولا ولو تقول علینا بعض الاقاویل، قولا آیا ہے نا لفظ، تقولا کا مطلب ہے اگر یہ ہم پر کوئی بھی جھوٹی بات ہماری طرف منسوب کرتا. تو تقولا کا لفظ اپنے باپ کی وجہ سے، جو تفاعل باب ہے، باپ کی وجہ سے یہ مصنوعی ہونے کے معنی، جھوٹے ہونے کے معنی پیدا کر دیتا ہے. تکلیف کا کیا مطلب ہے پتہ ہے آپ کو؟ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ مشکل میں پڑنا، مشکل میں ڈالنا تکلیف ہے. اور تکلف کیا ہوتا ہے؟ بناوٹ سے مشکل دکھائیں آپ، اور بناوٹ سے ایک چیز کا اظہار کریں، اس کو تکلف کہتے ہیں. اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر. ذوق نے اس مضمون کو الٹا دیا ہے، کہتا ہے اصل تکلیف تکلف میں ہے. تو اس کو باب تفاعل کہتے ہیں. تو دیکھا باب کے بدلنے سے کاف لام فے میں کس طرح تبدیلی پیدا ہو گئی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہاں کلف باب کرما یکرم و تکریمن، یہ باب تفعیل ہے. کلفہ کا مطلب ہے کسی کو تکلفہ کا مطلب ہے جھوٹی تکلیف. کلفہ کا مطلب ہے کسی کو مشقت میں ڈالنا اور تکلیف پہنچانا. تو اسی لیے قرآن کریم کی صورت اکثر جو ہمارے ہاں تلاوت ہوتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو بے وجہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا. لفظاً ہوگا بہت تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، لیکن عربی محاورہ ہے کہ جب شدت کا لفظ بولا جائے اور نفی کر دی جائے تو ترجمہ یہ ہوتا ہے ادنا سی تکلیف میں بھی مبتلا نہیں کرتا، جو ناجائز ہو، جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو. تو لا یکلف اللہ کا یہ مطلب نہیں بنے گا کہ اللہ کسی کو بہت تکلیف میں نہیں ڈالتا. یہ بنے گا کہ اللہ کسی کو ادنا سی تکلیف میں بھی مبتلا نہیں کرتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو. تو کلف اللہ اگر خالی ہو تو اس کا مطلب ہے کسی کو بہت مشکل میں ڈال دیا. قتلا سے قتلو تقتیلا بے لفظ قتلا تھا، اس کا مجہول ہے یہ قتلو. تو یہ ساری باتیں سیغوں میں پوچھی جائیں گی، لیکن ایک دن میں ہضم نہیں ہوا کرتا سیغہ. اس کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا تھا اس سے اتفاق نہیں اس مثال سے، لیکن رٹنا پڑتا ہے. کچھ صرف کو آپ کو رفتہ رفتہ رٹ کر یاد کرنا ہوگا، اور اس کی ترکیب یہ ہے کہ گردانیں یاد کریں. اور اس کے لیے آپ آئندہ سے مجھ سے پہلے طے کر کے بعض گردانیں لکھ کر بورڈ پر دکھانے لگ جائیں. وہ اپنے ہمارے وحید سے کہیں وہ کمپیوٹر پہ چڑھا دے. اس میں پھر یہ ہوگا قالا قالا قالو قالت قالذا قلنا. یہ اس طرح یاد کرنی پڑتی ہے. فعلا فعلا فعلتم فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتو فعلتما فعلتے فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا. اس طرح وہ خوب رکھتے ہیں جیسا پہاڑے یاد کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ پھر وہ خوب یاد ہو جاتی ہے. اسی طرز پر ہر باب کی گردان یاد ہو سکتی ہے. افتعالا افتعالا افتعلو افتعالت افتعالتا افتعالنا افتعالتا افتعالتما افتعالتما افتعالتم افتعالتے افتعالتما افتعالتنا افتعالتو افتعالنا. تو وزن اور جو طرز ہے، وزن تو بدل جائے گا تھوڑا سا، لیکن طرز وہی رہتی ہے اس کی. اور کوئی مشکل نہیں، ایک گردان رکھ لیں آپ تو ہر باب کی گردان آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اور پھر قرآن کریم کے ترجمے میں کوئی دقت نہیں پیش آئے گی. جہاں وہ فعل استعمال ہوا جو آپ نے رٹ لیا ہے، جس کی گردان رٹ لی ہے، وہاں آپ فوراً پہچان لیں گی اور اس کا صحیح معنی کریں گی پھر. ورنہ خالی معنی یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہے اور کچھ نہیں سمجھ آتی. براہ راست انسان تلاوت سے استفادہ نہیں کر سکتا. اس لیے ترجمہ سکھاتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ جو ہم آگے بڑھیں، آپ ساتھ ساتھ
बराह रास्त अरबी से मानी अखज़ करने की सलाहियत हासिल करना शुरू कर दें। व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, इज़ का मतलब है जब, जो ज़र्फ़ है ये हर्फ़ ज़र्फ़ कह रहे हैं, इस पर तहकीक करें, मुझे बताएं कि हर्फ़ ज़र्फ़ तो मुझे याद नहीं कि कोई सुना हो मैंने कभी। हर्फ़ शर्त है, लेकिन ज़र्फ़ के माने भी आते हैं ना इसमें। वैसे तो हर्फ़ शर्त है। हर्फ़ शर्त का तो मुहावरा राइज है, अरबी में मारूफ है, इन हर्फ़ शर्त है। इसी तरह और बहुत से हरूफ शर्त हैं, मगर हर्फ़ शर्त जो है वो कहीं ज़र्फ़ हो जाता है, कहीं और बातें माने, कहीं इसमें ज़र्फ़ मकानी बन जाता है, कहीं ज़र्फ़ ज़मानी बन जाता है। तो यूँ कहना चाहिए ये हर्फ़ शर्त है जिसमें ज़माने के माने पाए जाते हैं। ठीक है। इज़ क़ुल्तुम, अच्छा आगे है, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, या कौमे, या कौमे में या क्या है? या कहा जा किसी को हैं? हर्फ तो है, क्या हर्फ है? हर्फ निदा, बिल्कुल ठीक है। या जब कहते हैं ओ, ओए पंजाबी में कह देते हैं, तो ये हर्फ है मगर हर्फ निदा है, पुकारने के लिए। तो या कौमे, कौम किसको कहते हैं? कौम कोई, तो कौम के नीचे जेर क्यों आ गई है? कोई बता सकता है? हाँ बताएं। अब तो इमाम साहब की बेगम लग रही हैं, जिन्होंने अरबी में गोल्ड मेडल लिया हुआ है, वही है ना? देखा, ये फौरन अपने जवाब से पकड़ी गई हैं। या कौमी था, और जब कौमी में पे या आया है तो या के असर से ये गिर गई है इसकी, और या कौमें बन गया सिर्फ। लेकिन या क्या असर डालता है दूसरे पर, हर्फ निदा, ये बताएं अब आप। याद है या भूल गई हैं? नसब डालता है, बिल्कुल ठीक है। या के नतीजे में जिस तरह मफूल के ऊपर नसब आती है, हर्फ निदा भी नसब डाल देता है। और हर्फ निदा हो या ना हो, लेकिन अगर निदा के माने पाए जाएं तो नसब आ जाती है। रब्बना, रब्बुना नहीं कहते हम, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। यहाँ या गायब है, लेकिन जो मजमून है निदा का, पुकारने का, उस मजमून में नसब के माने पाए जाते हैं, इसलिए नसब होती है। तो कौमी की नसब ये कि उड़ने से ज़ाहिर हुई है। तभी मैं कहता था कि नसब ज़रूरी नहीं कि ज़बरी हो, बाज़ दफ़ा नसब की इलामत ज़बर बन जाती है, बाज़ दफ़ा एक हर्फ का गिर जाना नसब बन जाता है, बाज़ दफ़ा नसब की इलामत ज़ेर बन आ जाती है। मसलन मुस्लिमात में मुस्लिमातें तिन जो है ये भी मंसूब होता है। क्यों जी, दुरुस्त है कि नहीं? जमा जो है मुस्लिमात, इसकी नसब किस तरह आएगी? मुस्लिमातिन होगा ना, मुस्लिमातन तो नहीं होता। हाँ वही वही, अल्लाह मुस्त और आते ना, वामिर रो आते ना, इसमें जो तानीस की जमा है वो भी नसब को ज़ेर के ज़रिए ज़ाहिर करती है। तो ये रफ्ता रफ्ता आपको आगे बढ़ेंगे तो बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। आज की ग्रामर काफ़ी हो गई है, ये थोड़ी सी हैवी डोज हो गई है। हाँ अच्छा जी, चलें फिर अब चलते हैं आगे। वैस कुल तो ये पढ़ चुके हैं। अखज़तकुम साइक़तु, साइक़ा ने तुम्हें आप पकड़ा। अखज़त का क्या मतलब है? पकड़ लिया। क्या सीगा है इसका? हैं? क्या? ऊंची बोलें, सिर्फ माजी तो सीगा कोई नहीं होता। फेल माजी है, और अखज़त
آپ کو یاد نہیں باب میں نے ابھی پڑھ کے سنایا تھا، فالا فالا فالو فالت، ایک عورت کے لیے تانیث کے لیے یہ وزن آتا ہے فالت اخذت. تو آپ کو یہ پہچان ہو جانی چاہیے اب آسانی سے. اخذت کا مطلب ہے اس ایک تانیث نے، اس مونس نے پکڑا. اور صاعقہ بجلی کو کہتے ہیں، آسمانی بجلی کو. اور عورتوں کا نام بھی صاعقہ ہوتا ہے کیونکہ یہ مونس ہے، اس لیے مرد کا نام صاعقہ نہیں ہوتا، عورت کا نام صاعقہ ہوتا ہے. تو اخذت صاعقہ سے مراد ہے ان کو، اس کو آسمانی بجلی الصاعقہ نے پکڑ لیا. اب سمجھ آ رہی ہے ترجمہ؟ صاف صاف دیکھیں کتنا آسان ہو گیا ہے. آسان ہونے کے لیے تھوڑا سا شروع میں مشکل ہوتا ہے، پھر آسان ہو جاتا ہے. فَأَخَذَتْكُمُ، فا کا کیا مطلب ہے؟ فا کیوں جی تسی بھی قدم رکھ دو گے امیر سیال صاحب؟ بولو. پاکستان رب والوں کو پتہ لگے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ آج. سمیع اللہ سیال صاحب، مسلم دین ایسے بڑے ہاتھ ہلا رہے ہوئے گا اتنے کہ منو آندہ منو پوچھ کوئی نہیں رہا. ان کے دوست ہیں مسلم دین صاحب. ہاں بتائیں کیا ہے اخذت؟ پھر اور کیا ہے؟ اور کیا ہے اس کے ساتھ، سیغے کے ساتھ اور کوئی بات؟ اور فے کیا ہے؟ میں فے پوچھ رہا تھا پہلے. ہاں فے کیا ہے؟ فے حرف ہے بس. ہاں واو بھی حرف ہے، فے بھی حرف ہے. فے کا مطلب ہے پس. بات کا معنی نتیجے کے طور پر اگر آئے تو اس کے لیے فے استعمال ہوتی ہے. یعنی ایک بات کا دوسری بات کے ساتھ اس طرح تعلق جوڑا جائے کہ پہلے یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا، اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا. ہیں؟ نہیں وہ تو حروف علت بہت سے ہیں. حروف علت میں سے اچھا واو تو نہیں ہے حرف علت. حرف علت اور چیز ہے، وہ تو گرنے والے لفظ ہیں. حروف علت تو ہیں یا وائے، واو الف یہ، ان کو حروف علت ہیں. جو بیمار حرف جو ہیں جو گر جاتے ہیں. آپ نئی گرامر نہ یاد کرنا شروع کریں، اگلی دفعہ آنے سے پہلے آپ بھی دیکھ لیں، مجھے بھی دکھا دینا کتاب. کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے حروف علت تو 3 ہیں، وہ اس میں فے ہے ہی نہیں کہیں. آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، ممکن ہے حرف بیمار نظر آ رہا ہے آپ کو. علت کہتے ہیں بیماری کو. حروف علت تو ہمیں یہی یاد کرایا ہوا تھا کہ وائے، عرب جو ہیں وہ ہم ہائے کہتے ہیں نا، تو وہ وائے کہتے ہیں. تو یہ 3 حرف جو بیماری اور تکلیف کے وقت منہ سے بے اختیار نکلتے ہیں. اردو میں بھی پوئٹری میں وائے کا لفظ اسی لیے استعمال ہوتا ہے، اے وائے یوں ہو گیا. اس کو حروف علت کہتے ہیں، واو الف یہ. تو فے بس حرف ہے اور اس کا معنی ہے پس. تو فَأَخَذَتْكُمْ، اخذت کا تو مطلب سمجھ آ گئی نا، فعل ماضی مؤنث واحد اور ثلاثی مجرد. اخذا، اخذا لفظ حمزہ خے زال سے اخذا بنا. 3 حرف ہے نا یہ. یہاں 3 حرف سے مراد وہ نہیں جو اردو میں ہوتا ہے کہ تو 3 حرف، وہ اور چیز ہے. یہاں 3 حرف عام عدد کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. حمزہ خے زال 3 حرف سے جو فعل بنا وہ اخذا ہے. اور صیغے میں آ کر، جب باب میں آ کر جو زائد حروف ہوتے ہیں وہ اس کی ثلاثی مجرد ہونے کی حیثیت کو تبدیل نہیں کرتے. قالا ثلاثی مجرد، قالا اس میں ایک الف بھی آ گیا ہے، پھر بھی ثلاثی مجرد. قالو واو اور آخر ایک خاموش الف لکھا ہوتا ہے، یہ بھی ثلاثی مجرد. قلتم بھی ثلاثی مجرد ہے. تو ثلاثی مجرد اپنی ذات میں جب باب میں جاتا ہے تو باب کے الفاظ جو ہیں وہ ثلاثی مجرد کی حیثیت کو تبدیل نہیں کرتے،
وہ صرف باب کے معنی پیدا کرتے ہیں. ثلاثی مجرد ہی رہے گا. لیکن جب ایسے باب میں چلا جائے جہاں اس کے ذاتی حروف میں ایک حرف داخل کیا جائے تو اس وقت پھر وہ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی بن جاتا ہے. مزید کہتے ہیں زائد. مثلا فعل، اس نے یہ فعل کیا. استفعل، اس نے ایک فعل طلب کیا اپنے لیے. استصوبا، اس نے استصواب کہتے ہیں نا کیا، پوچھا، مسئلہ پوچھا، کوئی بات، کسی بات کی صحت دریافت کی. اور قبلہ کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھا. اور استقبلہ، آنے والے کی طرف آگے بڑھا یا اس کو اپنی طرف لے آیا. تو یہ جو لفظ سین ہے اور الف پہلا، یہ دو حرف ایک باب کی وجہ سے داخل ہوئے ہیں جو باب کے مزاج کے نہیں بلکہ ایک نئی بات اس ثلاثی مجرد میں داخل کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ باب کے حروف بھی داخل کریں گے. وہ باب کے حروف ہر قسم کے فعل میں مشترک ہیں. مثلا اب میں بتاتا ہوں استقبلہ سے اور قبلہ سے. میرا قبلہ کا اگلا کیا ہے؟ قبلہ کا مطلب ہے ایک آدمی آگے بڑھا یا اس نے قبول کیا. دو ہوں تو کیا ہوگا؟ قبلا. اور تین ہوں تو کیا ہوگا؟ قبلو. اور قبلت قبلتا قبلنا. ٹھیک ہے. استقبلہ یہ باب ثلاثی مزید فی ہے، لیکن گردان کے اپنے لفظ بھی بیچ میں داخل کرے گا. استقبلہ، استقبلا، استقبلو، استقبلت، استقبلتا، استقبلنا. تو ان دو چیزوں میں اشتباہ نہ کریں. یہ ابھی آپ پر واضح کرنا بہت ضروری ہے. جب ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد، تو ثلاثی مجرد جب باب میں داخل ہوتی ہے تو اس باب میں کا پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ اس کے غائب، حاضر، مخاطب وغیرہ وغیرہ مضامین پر روشنی ڈالتا ہے. ان وضاحتوں کے لیے جو حرف زائد کیے جاتے ہیں وہ باب کی نوعیت کو تبدیل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. قتلہ 3 حرف کا لفظ ہے. قتلا 4 ہو گئے. قتلو اگر خاموش الف کو بھی شامل کر لیں تو 5 ہو جائیں گے. تو انہوں نے باب کی 3 حرفی ہونے کے اوپر حرفی ہونے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، کیونکہ جو بھی معنی داخل کیے ہیں ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے، زمانے کے ساتھ بھی ہے، اس کے واحد تثنیہ جمع ہونے کے ساتھ بھی ہے، مخاطب ہونے کے ساتھ بھی ہے، اور متکلم ہونے کے ساتھ بھی ہے. تو ان معنوں میں جو بھی حروف باب اضافے کرتا ہے وہ حروف ان لفظوں کے اندر کا اضافہ شمار نہیں کیا جاتا. یہ قدر مشترک ہے جو ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی وغیرہ وغیرہ سب میں پائی جاتی ہے. سمجھ گئے ہیں اس کو اچھی طرح؟ اب اگر جب آپ کو سے پوچھا جائے گا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی ہے، تو یاد رکھنا کہ باب کے جو اپنے ذاتی حروف ہیں ان کو شمار نہیں کرنا. لیکن ایک ایسے باب میں اگر لفظ چلا جائے کہ اس لفظ کے اندر وہ باب لفظ داخل کر دے، حرف داخل کر دے، تو پھر وہ مزید بنے گا. مثال کروما کا مطلب ہے معزز ہوا، باعزت ہوا. اور کرما کا مطلب ہے اس نے اس کو عزت بخشی. تو یہ جو رے کی تکرار ہے یہ باب کے فعل غائب حاضر ہونے سے تعلق نہیں رکھتی. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلمہ کا لفظ جو ہے یہ کلام سے نکلا ہے، کاف لام میم. اور جب لام پر شد آ گئی تو بہت کلام کیا.
تو جب باب ایک حرف کا اضافہ کرتا ہے جس کا حاضر غائب سے تعلق نہیں بلکہ لفظ کے مضمون سے تعلق ہے، اس وقت وہ مزید فی بن جاتا ہے. سمجھ گئے ہیں بات اچھی طرح؟ کیوں جی؟ ہاں ٹھیک ہے. بتاؤ محمد صاحب، آپ کو سمجھ آ گئی بات کی؟ نہیں نا آئی؟ اچھا میں بتاتا ہوں پھر. اور اب آپ کو کوئی آسان مثال سمجھائیں. ڈھونڈیں جی. ہاں 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 ٹھیک ہے. غفرہ کا مطلب بڑا اچھا ہے، یہ تو روزمرہ کا ہمارا دستور ہے. یہ غفرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ان سے پوچھ رہا ہوں تعلم سے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، معاف کر دیا. اور استغفار جب آپ کرتے ہیں تو آپ معاف کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مانگتے ہیں. تو غفرہ کے ساتھ کتنے حرف زائد کیا آپ نے؟ الف سین تے. ٹھیک ہے. یہ استغفرہ ایک ایسا باب ہے جس نے غفرہ کے لفظ میں 3 حرف داخل کر کے اس کے مضمون کو تبدیل کر دیا. لیکن یہ تبدیلی، یہ مضمون اس کے سیرے سے اس لیے اس کے واحد تثنیہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، اس کے حاضر متکلم ہونے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. یہ جاری تبدیلی ہے جو باب کے ہر جز سے تعلق رکھتی ہے. غفرہ کی گردان کرو، بتاؤ پھر میں بتاؤں گا. ہاں کیا مطلب؟ ٹھیک ہے اونچی بولو. اور نے معاف کیا. ٹھیک ہے. ایک عورت نے یا ایک کوئی یوں تانیث ہے جو بھی، اس نے معاف کیا. ان 2 خواتین نے معاف فرما دیا. ہاں جی کبھی کبھی ہوتا ہے. ہاں ان سب نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب غین فے رے میں تو کوئی فرق نہیں نہ پڑا. اس باب کی جتنی حالتیں تھیں ان میں غین فے رے اپنی جگہ برقرار رہے، دائیں بائیں تبدیلیاں ہوئیں. لیکن جب استغفرہ کیا تو غین فے رے کے شروع میں الف سین تے کا اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کی گردان کرو. ہاں کیا مطلب ہے؟ اس ایک شخص نے معافی طلب کی، ہاں، اور پھر ان 3 سب نے، اور استغفرت اس ایک عورت نے. اس میں بھی الف سین تے ہر باب کے حصے میں اپنی جگہ برقرار رہے اور کوئی بھی نہیں گرا اس میں سے. استغفر تو استغفرنا. تو باب میں اگر کوئی لفظ اس کے ہر خانے میں داخل ہو اور اس میں سے کچھ بھی نہ گرے اور باب کی اپنی تبدیلیاں صرف ظاہر ہو رہی ہیں اس کے دائیں بائیں، ایسا لفظ جو مستقل طور پر اپنے حروف کو برقرار رکھتا ہے، اس سے وہ پہچان ہے اس بات کی کہ وہ مجرد ہے ثلاثی یا مزید فی ہے. غفرہ اس لیے مجرد ہے کہ باب کے حروف تو اس میں آگے پیچھے آئے ہیں جو واحد تثنیہ وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن غفرہ کے 3 حرف ہر حالت میں وہی رہے. جب ہم نے استغفرہ کہا تو استغفرہ کے جو 3 حرف زائد ہوئے ہیں یہ بھی باب کی ہر حالت میں برقرار رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اس باب نے ان کے اندر نئے حروف کو داخل کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں نئے معنی پیدا کر دیے ہیں. بس ایسی صورت میں اس کو ہم ثلاثی مجرد نہیں کہیں گے، ثلاثی مزید فی کہیں گے. ایسی ثلاثی جس میں اضافہ کر دیا گیا مزید فی ہے. فی ہے کا مطلب ہے اس میں مزید بڑھایا گیا. ٹھیک ہے. کافی ہوگی گرامر یا اور ابھی چاہیے کچھ تھوڑی سی؟ اچھا جی. ثم باسناکم من بعد موتکم
फिर हमने तुम्हें बासनाकुम, हमने तुम्हें उठाया दोबारा, जिंदगी बख्शी। मिन बाद मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो सिर्फ बेहोश करके जिंदा कर दिया था, तो ये तो नहीं हो सकता था कि कौम उससे भी बड़ा मौजज़ा दिखा जाए कि उसको मार कर फिर जिंदा किया जाए। तो मुराद सिर्फ यह है कि मौत के मुशाबे हालत हो गई थी, और ज़्यादा सख्ती इसलिए उन पर हुई है कि हज़रत मूसा की दफ़ा तो ये एहतियात की गई है कि बिजली पत्थर पहाड़ पर गिराई गई। यहाँ वो चूँकि उनमें नेकी कम थी और कुछ शरारत और कुछ इनकार का पहलू भी दाखिल था, तो अखज़त को मुसायका फरमाया है, बिजली ने तुमको आ लिया। वो नरम बिजली पड़ी है, उससे बच जाते हैं लोग, बेहोश हो जाते हैं और फिर होश आ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उस बिजली से तुम मर भी सकते थे, मौत के करीब जा पहुंचे, लेकिन हमने तुम पर एहसान फरमाया और तुम बच गए। लाल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम, लाल्ला ताकि, काश ऐसा हो, मुमकिन है ऐसा हो, कुम का मतलब है तुम, तो लाल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करने वाले, तशकुरू उनका मतलब है मुजारिया का लफ्ज़ है, यानी ताकि शुक्र अदा करते रहो, शुक्र अदा करना शुरू कर दो, आइंदा शुक्र अदा करो। ये सारे माने तशकुरून में दाखिल हैं। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, ज़ल्ललना मैंने कहा अभी है ना वक्त, हम ज़िलाल कहते हैं साए को और ज़िल कहते हैं साए को। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने लिए हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल होने का बार बार इजहार फरमाया है, ये बताने के लिए कि असल और होता है, ज़िल और होता है, लेकिन ज़िल असल के मुशाबे होता है और उससे असल की फजीलत में फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि असल असल ही है और अक्स अक्स ही है। मगर ये नहीं कह सकते कि असल कोई अक्स कामिल हो तो उसको इंसान मारे और उसमें ऐब ढूंढे, क्योंकि जब ज़िल में ऐब निकालते हैं तो असल का ऐब खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाता है। इन मानों में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मेरा फ़र्क किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो हकीकत को समझते ही नहीं। मैं तो कुल्लियतन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को अपने वजूद पर हावी कर चुका हूँ। इन मानों में मैं ज़िल हो गया हूँ। तो ये लफ्ज़ है ज़िल, यहाँ इस्तेमाल फरमाया है अल्लाह ताला ने, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, हमने तुम पर बादल को साया बना दिया। लफ्ज़न तर्जुमा यह है, बादल को साया बना दिया, यानी तुम पर बादल का साया कर दिया। व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना, और हमने उतारा, अंज़लना ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है और सलासी मजीद फी है। नज़ला का मतलब है उतरा, अंज़ला का मतलब है उतारा। नज़ला खुद उतरा, अंज़ला उसने उतारा, तो बाब इफ़ाल से अंज़ला बना है। इसका मतलब है अंज़लना, हमने उतारा, अलैकुम, अला का मतलब है पर, कुम का मतलब तुम पर उतारा, अल मन्ना मन, वस्सलवा और सलवा। मन और सलवा क्या चीज़ें हैं, इस पर मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ बातें बयान की हैं, बाइबल में भी इसका जिक्र मिलता है। एक तो कहते हैं बटेरे बड़ी कसरत से उस इलाके में गौल दर गौल पहुँचे, उन बटेरों का गोश्त उनको खाने को मिलता था, और जिन झाड़ियों में जो झाड़ वहाँ तभी मौजूद थे, उन पर बहुत मीठी गूंद लगती थी और कसरत से वो गूंद निकलती थी, जो ताकत भी बहुत रखती है और उसमें मिठास, बाद गूंदें बहुत मीठी होती हैं।
تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غذا کا سامان فرمایا، اور سبزیوں کا بدل وہ گوند بن گئی، اور گوشت اپنی ذات میں بہت طاقتور غذا ہے، اور خاص طور پر پرندوں کا گوشت صحت کے لیے بھی بہترین ہے۔ تو فرمایا من اور سلوا۔ بعض کہتے ہیں شام کو جب رات کو جو شبنم پڑتی تھی تو اس میں کچھ غذا اترتی تھی، کئی قسم کے قصے مشہور ہیں، لیکن بالعموم من اور سلوا سے مراد وہ آسمان سے عطا ہونے والی وہ نعمتیں ہیں جو خواہ پرندوں کی صورت میں ہوں یا دوسری غذا کی صورت میں ہوں، وہ ہم نے نعمتیں تم پر نازل فرمائیں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس کا ترجمہ جو میں نے کیا ہے وہ دیکھتا ہوں۔ یہاں اردو ترجمے میں نے من اور سلوا ہی رکھا ہوا ہے، ہم نے تم پر من اور سلوا اتارا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ من اور سلوا اب بہت معروف ہو چکا ہے، بائبل کا بھی محاورہ ہے، قرآن کا بھی محاورہ ہے، ہمارے درمیان رائج اور معروف ہے، اور من سلوا ایک ایسا معنی رکھتا ہے جو اب لوگوں کے لیے اجنبی نہیں رہا، اور اگر ایک معنی کیا جائے تو پھر دوسرے معنی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اگر ایک معنی یقینی ہو تو کوئی حرج نہیں، اس کو اختیار کر لیا جائے، مگر تشریحات میں کہیں کہیں فرق آ گئے ہیں، اس لیے مناسب یہی سمجھا گیا ہے کہ من کی تفصیل بیان کر دی جائے اور سلوا کی تفصیل بیان کر دی جائے، لیکن ترجمے میں وہی رکھا جائے، من اور سلوا۔ بس ہم نے جب تم پر من اور سلوا اتارا، وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کلو کھاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم اس میں پایا جاتا ہے۔ کھاؤ من طیبات، طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ رزقنا کا مطلب رزق سے نکلا ہے، رزقنا کا مطلب ہے رزق دینا، مگر رزق دینے کا جو اردو ترجمہ ہے وہ عطا فرمانا ہوگا یہاں، کیونکہ ورنہ وہ طیبات جو ہم نے تمہیں رزقائی ہیں یہ تو نہیں ہم اردو میں کہہ سکتے، عربی میں کہہ دیتے ہیں اس کو، رزقانہ جس طرح ہوتا ہے نا لفظ، اس طرح استعمال ہوتا ہے یہ۔ تو وہ طیبات جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا فرمائی ہیں، وما ظلمونا اور ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ، لیکن لفظاً ہے، اور لیکن کو اردو میں بلکہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن یا بلکہ تم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب وہ ظلم کیا تھا؟ بچڑا بنانا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور وہ وقت بھی یاد کرو، وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، اصل ہے قلنا ادخلوا، اور قلنا کے بعد جو الف ہے وہ رابطے کا علم ہے، ادخلو کا جو الف کا ہے وہ رابطے کا ہے، یہ گر جاتا ہے، اس کو وصلی کہہ دیتے ہیں، تو قل ندخلو ہو جائے گا، پہلے کی زبر دال پر لگ جائے گی، ادخلو کی بجائے، او والا حمزہ تو غائب ہی ہو گیا، تو آخری جو اپنے حرکت پڑی تھی وہ اگلے حرف کے پہلے، اگلے لفظ کے پہلے حرف کی حرکت بن گئی۔ قل نا ادخلو میں او جب مٹا دیں گے تو کیا بنے گا؟ قل ندخلو، وقل ندخلو ہم نے فرمایا، ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، ہاذہ القریۃ اس شہر میں،
फकुलू मिनहा हैसो शि'तुम, और उसमें से जहाँ से चाहो खाओ, रगदन बाफरागत, जितना चाहो खाओ। वदखुलुल बाबा, और दरवाजे में से दाखिल हो शहर के, क्या कहते हुए? सुज्जदन, सजदा करते हुए। ये मुराद नहीं है कि वहाँ जाके सजदा करते हुए सजदों में ही आगे बढ़ रहे हैं। मुराद ये है अल्लाह की अताअत इख्तियार करते हुए, खुदा के हुजूर सजदा रेज होते हुए। ये मुहावरा है, तो लफ्ज़ी तर्जमा इसका जिस्मानी नहीं किया जा सकता। अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होते हुए उस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। वक़ूलू हित्ततुन, और अल्लाह ताला से अपनी ख़ताओं की बख्शिश तलब करो। हित्ततुन का लफ्ज़ माफ़ी मांगने के लिए इस्तेमाल होता है। नग़फिर लकुम, हम बख्श देंगे, ख़तायाकुम, तुम्हारी ख़ता। तो हम तो बख्शने पर आमादा हैं, तुम कहो तो सही, मुंह से कुछ बोलो तो सही। बख्शिश तलब करोगे तो हम बख्श देंगे, लेकिन उसका उन्होंने कुछ और बना लिया बाद में, वो मैं बाद में बताऊंगा। वक़ूलू हित्ततुन, और ये कहो कि हम बख्शिश तलब करते हैं। नग़फिर लकुम ख़तायाकुम, हम तुम्हारी ख़ताएँ बख्श देंगे। वसनज़ीदुल मोहसिनीन, और तुम में जो मोहसिन लोग हैं, मोहसिन मैंने जो खूबियों को खूब उम्दगी से अदा करने वाले, नेक बातों को आम लोगों से बढ़कर हुस्न के साथ अदा करने वाले, वो जो लोग हैं उनको हम और भी ज़्यादा देंगे, क्योंकि वो नेकियों को सजाते हैं। बस हम उनकी जज़ा को सजा कर पेश करेंगे। हो गया? हाँ जी। फ़बद्दल लज़ीना ज़लमू, एक आयत रह गई है फिर। फ़बद्दल लज़ीना ज़लमू, तो वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उन्होंने बात बदल दी। कौलन, कौलन मैंने बात, गैरल लज़ी क़ील लहुम, गैरा मैंने जो गैर थी उसके सिवा कुछ और बात बना दी जो उनको कही गई थी। क़ील लहुम, जो उनको कही गई थी। फ़अंज़लना अलल लज़ीना ज़लमू रिज़्क़न मिनस समाए, बस हमने उतारा उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया, रिज़्क़न अज़ाब आसमान से, बेमा कानू यफ़सुक़ून, उस वजह से जो वो फ़िस्क़ व फ़ुजूर या नाफरमानी किया करते थे। फसा का मतलब होता है नाफरमानी, और नाफरमानी के नतीजे में होने वाले गुनाह को भी फ़िस्क़ कहा जाता है। अब यहाँ वो बात कैसे बदला दी उन्होंने? वो दरअसल हित्ततुन के लफ्ज़ को वो ना नून गुना बना के कहते थे, हिंततुन, कि बज़ाहिर वो मान रहे हैं लेकिन शरारत थी उसमें। वो मूसा को ताने दे रहे थे कि तुमने अच्छा लंबे अरसे हमें जंगलों में फिराया और ख़राब किया, और हम गंदम को तरस गए हैं और गंदम नहीं मिल रही। तो जब वो कहते थे कि अब शहर में दाखिल हों, गंदम लूट के खाएंगे यहाँ से, तो बजाय इसके कि मग़फ़िरत तलब करते हुए दाखिल हों, उन्होंने हिंततुन कहना शुरू कर दिया। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है फ़बद्दल लज़ीना ज़लमू कौलन, वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उन्होंने बात को बदल दिया, गैरल लज़ी क़ील लहुम, उस बात में जो उनको नहीं की गई थी, कि ऐसी बात में जो उनको नहीं कही गई थी। फ़अंज़लना अलल लज़ीना ज़लमू, फिर हमने उन पर आसमान से गज़ब नाज़िल फरमाया, अज़ाब नाज़िल किया, बेमा कानू यफ़सुक़ून। एक रुकू हो गया आज, बाकी फिर इंशाअल्लाह कल है बाकी।